Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. Friends, I welcome you all for the TYBSc Inorganic Chemistry Semester 6 lecture of some selected topics. So friends, in our last lecture we have started with the new topic of the chemistry of group 18. In that we have discussed about the introduction or discovery of the group 18 elements, and we have also discussed about the physical and chemical property of group 18 elements. So we have discussed about their trends in atomic radii, monoatomic states, then electronegativity, and also how they form the clathrate compounds. So in this lecture we will discuss about the various other compounds that are formed by the group 18 elements. So first of all we will discuss about the compound of xenon. Okay, so a number of compound are seen that are produced by xenon. Okay, and mainly it attaches to the fluorine or oxygen atom. So various compounds of xenons are fluoride, oxofluorides and oxides. So in this table we can see that when xenons show +2 oxidation state, it can form xenon fluoride, okay, ZeF2. If it shows +4 oxidation state, then it can form xenon fluoride as well as xenon oxofluoride. If xenon shows +6 oxidation state, then it can form xenon fluorides, oxofluorides as well as oxides of xenon. And finally, even xenon can show +8 oxidation state, where it can form fluorides, oxofluorides as well as oxides. So see the structures, these are very important and very interesting compounds. So up till now we have seen that it is inert and they are not showing any type of compound, but slowly by some other discoveries it is proved that even inert gases, which are now called as noble gases, they can also form this type of different compounds. So in this case we will discuss about each and every compound formed by xenon one by one. Okay, so first of all the very first compound we will discuss are the fluorides of the xenon. Okay, तो आप ये फॉर्मूला देखो, xenon difluoride. The formula itself shows you about the compound. xenon दो फ्लोरीन एटम के साथ अटैच हुआ है ना, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, फ्लोराइड. तो आप ये इधर स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि फ्लोराइड्स कंसिडर करते तो जेनॉन में सिर्फ क्या है, ओनली फ्लोरीन एटम इज अटैच. अगर सेकंड ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो इट इज़ जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड्स, मीन्स अलॉन्ग विथ फ्लोरीन देर इज ऑल्सो ऑक्सीजन. ओके, तो उसको कहते हैं ऑक्सोफ्लोराइड्स. एंड फाइनली ऑक्साइड्स में क्या है, देर आर ओनली ऑक्साइड्स ऑफ द जेनॉन. ओके, तो हम फिर से यहाँ जाते हैं. द फर्स्ट कंपाउंड इज xenon difluoride. तो हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल first method of preparing xenon difluoride is just you have to heat the mixture of xenon and fluorine in the ratio of 2:1. Okay, this procedure is done in a sealed nickel vessel at 675 Kelvin. तो रिएक्शन बहुत सिंपल है. xenon और फ्लोरीन अगर हम लोग मिक्स करते, हीट करते, देन xenon difluoride is formed. Second method is by irradiation of the mixture of xenon and fluorine. Okay, so this mixture is you have to bring in the contact of light at high pressure and you have to pass mercury arc through that. Okay, so xenon and fluorine अगर हम लाइट के थ्रू पास करते तो xenon डाइफ्लोराइड बन जाता है. द थर्ड मेथड इज xenon और ऑक्सीजन का फ्लोरिनेशन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें xenon का फ्लोरिनेशन कैरी आउट करना है. सो हियर इन दिस रिएक्शन xenon एंड ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड है ना, O2F2, T's आर हीटेड एट 95 डिग्री केल्विन, तो आपको xenon डाइफ्लोराइड अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन मिल जाता है. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. सो सी हियर हाउ द स्ट्रक्चर इज डिस्कस्ड. ये आप ध्यान से देखना.
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो अगर हम ज़ेनॉन की बात करें, सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर है 54। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 8 18 18 एंड 8। सो दिस वे वी कैन राइट द 54 दैट इज ज़ेनॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फ्लोरीन बहुत सिंपल है, F9, तो इट हैज़ ओनली 2,7 दिस वे। ओके, तो अगर हम ज़ेनॉन की बात करें 2 8 18 18 8, तो उसके आगे देखिए द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज़ 5s2 एंड 5p6, है ना। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑलवेज NS2 NP6, ओके, एंड द ऑक्टेट इज़ कंप्लीटेड। तो ज़ेनॉन के पास 54 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी आउटर मोस्ट जो शेल है इट इज़ 5th शेल, तो हम लोग लिखेंगे 5s2 5p6 एंड 6 और 2 देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वही बात करें अगर फ्लोरॉन की, तो दे आर 2 and 7, ओके 9। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, 2s2 2p5, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, है ना, ठीक से देखिए उसके नीचे, तो ज़ेनॉन के दोनों साइड में कौन है, देयर इज़ फ्लोरीन, और राइट हैंड साइड में भी कौन है, फ्लोरीन। ओके, तो हम लोग ज़ेनॉन और फ्लोरीन के आसपास उसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। तो ज़ेनॉन के पास हम लोग डॉट से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 8, है ना। सी इन द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देयर इज़ 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड दी ज़ेनॉन। तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेफ़्ट और राइट साइड में भी एक एक है ना। और उसको किसके साथ बॉन्ड बनाना है, फ्लोरीन के साथ। और फ्लोरीन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 7। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। वो एक एक इलेक्ट्रॉन वो ज़ेनॉन से शेयर करते, है ना। तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग क्रॉस से दिखा रहे हैं, ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉन डॉट से, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से। सो अराउंड फ्लोरीन देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 जो है डॉट वाला वो ज़ेनॉन से आ रहा है। उसी तरह राइट हैंड साइड में आप देखिए फ्लोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस, है ना। और क्रॉस के बाजू में एक डॉट है, दैट इज़ फ्रॉम ज़ेनॉन। सो दिस वे the electron and dot structure of xenon is shown in this manner. So number of bonding pair around the xenon, xenon के आसपास बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं, कितने बॉन्ड बने, सिर्फ 2, एक राइट हैंड साइड वाले फ्लोरीन के साथ और एक लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्लोरीन के साथ। तो वी कैन से देयर आर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2, है ना। और उसके नीचे देखो नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड xenon, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर, है ना। तो ज़ेनॉन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है दोनों साइड में, लेकिन स्टिल देयर आर 3 डॉट्स और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एज इट इज़, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। आप ठीक से कंसिडर करो, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, तो 2 बॉन्डिंग पेयर, है ना। और 3 जो पेयर है डॉट वाले, देखो ज़ेनॉन के आसपास उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, सो दे आर लोन पेयर्स। सो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग 2 एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ज़ेनॉन इज 3, है ना। सो देयरफॉर वी विल कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर। तो ये स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिंक टू ज़ेनॉन प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर विथ ज़ेनॉन। तो पेयरिंग वाले हैं 2 और लोन पेयर है 3, सो टोटल स्टेरिक नंबर इज़ 5, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ज़ेनॉन किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, लास्ट में देखिए बॉक्स में, हेंस ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड इज़ Ab2E3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है ज़ेनॉन को, B2 मीन्स देर आर 2 बॉन्डिंग पेयर और 2 pair of electron which is sharing a bond, and the 3 E मतलब lone pair of electron। तो इस तरह से जो ज़ेनॉन है डाइफ्लोराइड वो किस तरीके का एटम और स्ट्रक्चर बनेगा, Ab2E3 टाइप। ओके,
आगे हम लोग देखते हैं। सो ये जो स्टेरिक नंबर है 5, ये स्टेरिक नंबर 5 क्या करेगा, इट विल गिव द स्ट्रक्चर ऑफ xenon डाइफ्लोराइड, है ना. सो हियर वी कैन सी दैट देर आर 2 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and there are 3 lone pair of electron. Okay, so therefore xenon will show trigonal bipyramidal type of structure. तो हम लोग देख सकते हैं कि xenon के अराउंड क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और उस ट्रायंगल के पास क्या है, देर आर 3 लोन पेयर्स, और जो फ्लोरीन है वो उस प्लेन के ऊपर और नीचे जाएगा. सो दिस वे xenon इज फॉर्मिंग ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. बाईपिरामिडल मतलब एक ऊपर की तरफ आ रहा है प्लेन के और एक नीचे की तरफ जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू VACPR थियोरी वी कैन से द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ये देखो, है ना, 2 + 3. तो इनमें से जो 3 लोन पेयर है वो कैसे एडजस्ट हो जाएंगे, एक ही प्लेन में, है ना, ट्रायंगुलर प्लेन में. और जो 2 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड बना रहे, एक ऊपर की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा. सो दिस वे दे कैन फॉर्म अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी दिखाई दे रही है. तो ये जो हम लोग सर्कल्स में देख रहे हैं, दे आर द लोन पेयर्स, है ना, 3 तरफ 3 दिशा में जा रहे हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल्स में जा रहे हैं. दे आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी xenon. और फ्लोरीन डाइफ्लोराइड है तो एक फ्लोरॉन ऊपर की तरफ आ रहा है और एक फ्लोरॉन नीचे की तरफ आ रहा है. तो अगर इसको हम घुमाते हैं तो हम लोगों को ये राइट हैंड साइड वाला स्ट्रक्चर मिलता है कि xenon 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, सो इट इज़ 180 डिग्री, है ना. एंड शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज लीनियर ज्योमेट्री, एक ही लाइन में है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि xenon डाइफ्लोराइड इज लीनियर स्ट्रक्चर. xenon डाइफ्लोराइड इज लीनियर स्ट्रक्चर. सो दिस वे the simple way we can explain the geometry and shape of xenon difluoride. Okay, फिर हम लोग अगला मॉलिक्यूल देखेंगे, that is now xenon tetrafluoride. xenon डाइफ्लोराइड हो गया, अभी क्या बोलेंगे, xenon tetrafluoride. मतलब xenon के साथ अभी कितने फ्लोरीन एटम अटैच है, 4, राइट. तो पहले हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं, हाउ यू कैन प्रिपेयर देम. यू हैव टू हीट द मिक्सचर ऑफ xenon एंड फ्लोरीन, बट नाउ इन द रेशो ऑफ 1:5. जो आपका रेशो रहेगा xenon और फ्लोरीन का वो क्या होने वाला है, 1:5. सो दिस वे इफ यू हीट दिस मिक्सचर यू विल गेट xenon tetrafluoride. Second method is also very simple. You have to pass electric discharge through a mixture of xenon and fluorine in the molecular ratio of 1:2. Okay, तो अगर आप ये xenon और फ्लोरीन के मिक्सचर के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते तो भी आपको xenon tetrafluoride मिल जाता है. सो प्रिपरेशन मेथड्स आर वेरी सिंपल. नाउ अगेन वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ xenon टेट्राफ्लोराइड. टेट्रा मतलब 4 फ्लोरीन एटम. हाँ, देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फिर से xenon के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 54. तो उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे 2 8 18 18 8, ये तो हमेशा सेम रहेगा. फिर फ्लोरीन है उसके नीचे, तो फ्लोरीन के भी हमेशा 9 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 7. फिर आप राइट हैंड साइड में देखो, जो आउटर मोस्ट शेल है xenon की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8. देखो 2 8 18 18 8, है ना. तो ये जो 8 है इसी के वजह से हम लोग बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट. तो उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5s2 5p6. 8 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल में 6. सो 5s2 5p6. तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में 8. यही हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा है. फ्लोरीन के पास कितने हैं, आउटर मोस्ट में 2 और 7 है. तो 7 को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2p2 2p5, है ना. ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ S2 और p6,
ये सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, प्लीज़ अंदर के इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करने, है ना, वो तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं अंदर के शेल्स में। तो आउटर मोस्ट शेल में जेनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो उनको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 5s2 5p6 इज इक्वल टू 8, है ना। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2s2 2p5 इज इक्वल टू 7, 5 + 2 7 और ऊपर 6 + 2 8। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है जेनॉन और फ्लोरीन के, उनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो अब देखो स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें क्या है देखो, जेनॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं हमें? 8। तो मैं 4 पेयर दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जेनॉन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन मैं डॉट दिखा रही हूँ, है ना। कितने डॉट है देखो जेनॉन के आसपास? 8, है ना। ठीक से देखना, 2 ऊपर 2 नीचे और 4 साइड में 4 डॉट्स। तो ये मिलके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जेनॉन के। अभी हर एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने, लेकिन ऐसे फ्लोरीन कितने हैं? 4, ZnF4, है ना। तो हम लोग 4 फ्लोरीन एटम दिखाएंगे जेनॉन के 4 तरफ। और उसके पास हर एक फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो मैं उसको क्रॉस से दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हर एक फ्लोरीन के पास देर आर 7 क्रॉस इलेक्ट्रॉन, जो क्रॉस से दिखा है दे आर द इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। तो फिर वो कितने हो गए देखो, हर एक के पास 7, और जो उसको 8वें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो जेनॉन से ले रहा है। सो द 8 इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी फ्लोरीन इज टेकन बाय जेनॉन। तो अभी जेनॉन का खुद का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, और फ्लोरीन को जो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन जेनॉन उनको शेयर कर रहा है। इस वजह से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर अराउंड जेनॉन। तो जेनॉन के पास बॉन्ड कितने बने देखो, 4 दिशा में 4 बॉन्ड, है ना, 1 2 3 4। सो देर आर 4 बॉन्डिंग पेयर, 4 बॉन्ड बनाए 4 फ्लोरीन के साथ। तो इसीलिए कितना हो गया, देर आर 4 बॉन्डिंग पेयर। और अभी लोन पेयर कितने बचे देखो, जेनॉन के पास ऐसे कितने पेयर है जो बॉन्ड नहीं बना रहे? देर आर 2 पेयर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। सो देयर फोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? 4 बॉन्ड बनाए 4 फ्लोरीन के साथ, तो 4 हो गए बॉन्डिंग पेयर। और 2 पेयर जेनॉन के पास ऐसे है देखो, डॉट से बनाए हुए, कि जो किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो वो हो गए लोन पेयर। सो दे आर 2। सो स्टेरिक नंबर इज 4 + 2 इज इक्वल टू 6, है ना, सिंपल। हेंस जेनॉन टेट्राफ्लोराइड इज AB4E2 टाइप। ए मतलब फिर से सेंट्रल एटम जो कि जेनॉन है, B4 बॉन्डिंग पेयर 4, है ना, और E मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज 2, है ना। सो टोटल 6, और 6 कैसे है? 4 बॉन्डिंग पेयर 2 लोन पेयर। तो इसीलिए द मॉलिक्यूल ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड इज AB4E2 टाइप। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। बीच में कौन है? जेनॉन। बीच में कौन है? जेनॉन। और उसके पास क्या है? 4 फ्लोरीन एटम्स। तो ये 4 फ्लोरीन एटम कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? देखो आप राइट हैंड वाला स्ट्रक्चर देखो, वो सिंपल है। उसमें क्या है, चारों जो फ्लोरीन है एक ही प्लेन में है ना। और जो 2 लोन पेयर है उसके पास एक ऊपर के प्लेन में एक नीचे के प्लेन में। लेकिन एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी हम लोग बना सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है। उस कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो कि जेनॉन क्या कर रहा है, 4 फ्लोरीन एटम, एक ऊपर एक नीचे, और एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 जो लोन पेयर है वो भी उसी प्लेन में है। तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉमन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जनरली फ्लोरीन एटम कैन कम इन ओनली 1 प्लेन विच इज़ द स्टेबल स्ट्रक्चर, जो राइट हैंड साइड वाली है, कि जेनॉन के जो बॉन्डिंग 4 पेयर है फ्लोरीन के साथ एक ही प्लेन में आएंगे, 1 2 3 4। और जो 2 लोन पेयर है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 4 बॉन्डिंग 2 लोन,
तो दो लोन पेयर, एक ऊपर की प्लेन में और एक नीचे की प्लेन में, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर शेप है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहाइड्रल शेप, है ना। तो आप पूरे मॉलिक्यूल का शेप कंसीडर करते हो तो वो क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। सो अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, चारों एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो दे शुड अरेंज देमसेल्फ विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिपल्शन। वो जो फ्लोरीन है उनके साथ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिपल्शन होना चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे 4 एटम एक प्लेन में होते हैं और एक ऊपर एक नीचे, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहाइड्रल। सो ज़ोनॉन टेट्राफ्लोराइड विल शो ऑक्टाहाइड्रल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। और अगर हम लोग हर एक फ्लोरीन की बात करेंगे तो द अरेंजमेंट इज शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, है ना। तो ये जो चारों फ्लोरीन है कैसे है, देखो चारों तरफ, है ना। सो द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सियल इन पोजिशन। एक्सियल मतलब एक ऊपर और एक नीचे, एक ही एक्सिस में है इन द ऑक्टाहाइड्रॉन, है ना। एंड देयरफॉर इट विल हैव नो डिस्टॉर्शन। अगर लोन पेयर एक ऊपर और एक नीचे की तरफ रहती है तो बाकी के जो फ्लोरीन है उनको कोई रिपल्शन नहीं आएगा। एंड देयरफॉर सपोज यू डोंट कंसिडर दिस लोन पेयर, फिर आप राइट हैंड साइड वाला डायग्राम देखो, जेनॉन और उसके चारों तरफ कौन है, फ्लोरीन, देन इट हैज़ बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखो हर एक फ्लोरीन के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो वो एक स्क्वायर बना रहे हैं, है ना। सो देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड इज स्क्वायर प्लेनर। अभी आप लोग बोलोगे कि एक तरफ ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं, है ना, और एक तरफ आप क्या बोल रहे हो, स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्या है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी। इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे सारे तो हम लोगों को ऑक्टाहाइड्रल शेप मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, जो बॉन्डिंग पेयर है जो और या एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे वो कंसिडर करेंगे तो क्या दिखाई देगा, जेनॉन और उसके चारों तरफ हर एक कॉर्नर में कौन है, फ्लोरीन। तो अगर ये फ्लोरीन हम लोग जोड़ देते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में जोड़ा है तो हम लोगों को क्या मिलता है, अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। एक स्क्वायर जो प्लेनर है एक ही प्लेन में और जिसके चारों कॉर्नर में एक एक फ्लोरीन एटम है। सो देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर molecule is square planar, okay. Now we will discuss the third molecule which is quite simple and its name is xenon hexafluoride, है ना। तो अभी हम लोगों ने xenon डाईफ्लोराइड देखा, टेट्राफ्लोराइड देखा, अभी हम लोग देखेंगे हेक्साफ्लोराइड जिसमें xenon के आसपास देयर विल बी 6 फ्लोरीन एटम्स। तो सिंपल वे फर्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अगेन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ xenon एंड फ्लोरीन इन द रेशो ऑफ 1:20। तो यहाँ पे रेशो जो है आपको कितना लेना होगा, 1:20 एंड इट इज़ हीटेड इन अ सील्ड निकेल्ड वेसल अंडर अ प्रेशर ऑफ 50 एटमॉस्फेयर। तो अगर आप ऐसी कंडीशन मेंटेन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, xenon F6, xenon हेक्साफ्लोराइड। फिर दूसरा जो प्रोसीजर है प्रिपरेशन का, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन xenon टेट्राफ्लोराइड एंड डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड इज O2F2। तो अगर आप 40 to 193 केल्विन के बीच इसको हीट करते तो फिर से आपको क्या मिलेगा, xenon हेक्साफ्लोराइड। सो प्रिपरेशन मेथड्स आर क्वाइट सिंपल। Now we will discuss the structure of this particular compound। फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। xenon 54 2 8 18 18 8। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो उनको मैं क्या करूँगी, डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। xenon इज इक्वल टू 5s2 5p6। हमेशा मैं इतना ही क्यों लिखती हूँ, बिकॉज इन द आउटर मोस्ट शेल देर आर 8 इलेक्ट्रॉन, 5s2 5p6 तो मिलके हो गए 8। फिर आगे देखेंगे फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ 2,7।
तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7, तो उन्हें मैं कैसे लिखूंगी, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन F इज इक्वल टू 2s2 2p5, तो 5 और 2 मिलके हो गए 7। तो जेनॉन के आउटर मोस्ट में है 8 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन। देन हाउ आई कैन ड्रॉ द लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो सेंट्रली देयर इज जेनॉन और उसके आसपास कितने फ्लोरीन है अभी 6 है ना। तो पहले मैं जेनॉन के जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनको लिख लेती हूँ। देखो ऑल डॉट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है जेनॉन के पास वो कितने हो गए 8। फिर उसके आसपास लिखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो डॉट से बने है ना, डॉट से नहीं क्रॉस से बने। तो दैट क्रॉसेस आर 7 क्रॉसेस फॉर एवरी फ्लोरीन। और फ्लोरीन को जो 8वें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो किससे कंप्लीट कर रहा है, वो जेनॉन से है ना। तो जेनॉन के खुद के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, जो कि डॉट से दिखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और लास्ट में जेनॉन के पास में जो है आपको कैसे देखने, देखो जेनॉन के चारों तरफ 6 फ्लोरीन एटम है, तो उनसे वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। और जेनॉन के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो वहाँ पे 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट्स, तो टोटल हो गए 8। और एवरी फ्लोरॉन इट इज़ हैविंग 6 और 7 इलेक्ट्रॉन और एक एक जेनॉन के साथ शेयर कर रहे हैं। सो नीचे देखना नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर अराउंड जेनॉन इज 6, क्योंकि उसने 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, तो ऑब्वियसली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे दे आर 6। नाउ हाउ मेनी लोन पेयर, ओनली 1। 8 में से 6 तो चले गए 6 फ्लोरीन के साथ, तो कितना लोन पेयर बचा, सिर्फ एक है ना। सो देयरफॉर स्टेरिक नंबर इज 6 + 1 इज इक्वल टू 7। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड इज विच टाइप स्ट्रक्चर, AB6E1। तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है AB6E। सो दिस वे जेनॉन हेक्साफ्लोराइड इज AB6E टाइप, क्योंकि देर आर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर बॉन्डिंग पेयर्स एंड 1 इज लोन पेयर। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। देखो ठीक से देखना, जेनॉन है और उसके आसपास कितने फ्लोरीन है 6। सो 1 2 3 4 5 6। इसमें से जो 5 है वो एक ही प्लेन में है, 1 2 3 4 5 है ना। और 5 में से देर इज़ 1 लोन पेयर ऑल्सो। तो बचा हुआ जो फ्लोरीन है एक ऊपर की प्लेन में आ रहा है और एक नीचे की प्लेन में आ रहा है। तो आप टोटल फ्लोरीन काउंट करोगे तो देर आर 6 फ्लोरीन, 4 इन 1 प्लेन, 5th इन अबव प्लेन एंड 6th इज डाउन प्लेन, और उसी के बीच में एक लोन पेयर भी है। सो दिस वे 6 बॉन्डिंग पेयर्स and 1 lone pair of electron around xenon. Hence, according to VSEPR theory, the shape is pentagonal bipyramidal. देखो पेंटागन है xenon के अराउंड 1 2 3 4 5, उसमें एक लोन पेयर भी है और बचे हुए 2 फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे। सो इट इज़ बाइपिरामिडल। सो दिस वे xenon is forming pentagonal bipyramidal structure. फिर इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ठीक से ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखेगा कि द एग्जैक्ट शेप ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो ये एक प्लेन में 5 फ्लोरीन, मतलब 4 फ्लोरीन और एक जो लोन पेयर है नहीं रह सकते, तो वो लोन पेयर को बाहर निकाल देती है। कैसे, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इट इज़ थ्रोइंग दैट लोन पेयर अवे टू अवॉइड द रिपल्शन। एंड फिर उसको दूर करने के बाद नाउ देर इज अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर. So the exact shape of xenon hexafluoride is distorted octahedral structure as the lone pair appear to be less spaced than bonding pair. Okay, so बाकी के जो structure है हम लोग अगले lecture में देखेंगे. Till that you take care and stay safe. Thank you.